Hello everyone. Now today in this video we will be discussing the balancing of a chemical reaction. So first of all let us discuss what is balancing. Balancing होती क्या है? So it's the process, balancing is the process of making the number of different types of atoms equal on both sides of an equation and this is only is called balancing of equation. Balancing of equation. So what is the process of balancing? Balancing में किसी reaction का LHS और RHS बराबर कर दिया जाता है in terms of number of elements. So let us take an example and discuss this in detail. Suppose I have a reaction. It is Fe plus H2O. This is the example which is given in NCERT also. So Fe plus H2O, it gives you Fe3O4 plus H2. Now if you see this reaction, you should know this is the reactant part. So the left hand side of a reaction which falls at the left hand side of yours is called as reactant. Reaction का जो left hand side है वो आपके left hand की side की तरफ आता है, ठीक? And this is your right hand side. So the right hand side of the reaction is called as product. Right? यानी जो हमारा left है वो reaction का भी left है और वहां हम reactants लिखते हैं. Reactants वो species होती हैं जो आपस में chemical reaction करके right hand side वाली चीज बनाती हैं जिसे हम product कहते हैं. ठीक, तो जब ये रिएक्शन होगी तो ये बनेगा. ठीक है, ये तो हो गया व्हाट इज अ रिएक्शन, व्हाट इज अ रिएक्टेंट इन अ रिएक्शन एंड व्हाट इज अ प्रोडक्ट इन द रिएक्शन. बट द थिंग विच इज रिटन इन ब्लैक फ्रॉम हियर टू हियर इज अ केमिकल रिएक्शन and we have already discussed about what is a chemical reaction in the last video. Now we will talk the meaning of balancing. Balance means making this part and this part same or equal. Equal in terms of what? Then equal in terms of number of atoms. Like if you see here you have one Fe, that is one iron, but here they are three. It means you can see this reaction is not balanced. Not balanced why? Because the number of atoms of this side is not equal to this side. Right? So this is only we have to do. Now we will do the balancing and we will see how to make the number of elements equal on both the sides. Now see, I have drawn a table which is having three columns. In the first column, you write the heading as element, number of atoms in LHS. LHS मतलब left hand side, or you can write number of atoms of this element on the reactant side also can be written. And on the third column, in the third column you write number of atoms in RHS. So I hope till this much explanation, LHS of a reaction and RHS is clear. But let me tell once more, the reactant side is LHS of the reaction and product side is the RHS of the reaction. Now see the first column and then look at your reaction. What is the first element written here? So you have iron, right? Then second element is hydrogen and third element is oxygen. Is there any other element? No, only hydrogen, oxygen and iron are there. Now what has to be done is, in these two columns,
You will compare the number of elements on LHS and RHS. Before we fill these two columns, listen about this column once more. What has to be done is write all the elements which are given on the left hand side. You will not write the elements of the right hand side. सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स को यहाँ लिखेंगे, राइट के नहीं लिखेंगे. लेफ्ट के ही क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी वही बनेगा. ऐसा तो कभी होता नहीं कि आप आयरन लें और यहाँ एल्यूमिनियम बन रहा हो. इसीलिए आपको जरूरत नहीं है आरएचएस के एलिमेंट्स को यहाँ लिखने की. जो एलएचएस में है वही यहाँ बनेगा, बस नंबर अलग अलग है. तो इस नंबर को हम आगे कवर अप करेंगे. तो हमने एलिमेंट्स लिख लिए हैं कि ये 3 एलिमेंट्स हैं. अब आप देखें कि आयरन जो है उसके नंबर ऑफ एटम्स एलएचएस में कितने हैं. तो यहाँ पर एक ही है, यहाँ लिख दें 1. फिर यहाँ देखें, यहाँ पे Fe के आगे क्या लिखा है? 3. सो नंबर ऑफ आयरन इन आरएचएस इज 3. ओके. नाउ नेक्स्ट इज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन एलएचएस में कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं. आरएचएस में देखें, यहाँ भी 2 दिख रहे हैं. तो ये बराबर दिख रहा है. इट सीम्स टू बी बैलेंस्ड. ठीक है, अभी तो दिख रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है. देन ऑन LHS C the oxygen is 1 and on RHS it is 4. तो जब आपकी ये टेबल बन गई है तो आप सबसे पहले एक काम करें कि इस रिएक्शन को, ये क्वेश्चन दिया हुआ, इस क्वेश्चन को आप टच ना करें. जो भी क्वेश्चन दिया है उसको देख करके कॉपी पे एज इट इज लिखें, टेबल बनाएं और फिर इस रिएक्शन को रीराइट करें. यहां मैं इस रिएक्शन को फिर से लिख लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा गैप छोड़कर रिएक्टेंट्स के बीच में. I am rewriting this. So it was Fe plus H2O giving you Fe3O4 plus H2. तो मैंने इनको थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ के लिख दिया है. Now what has to be done is, जो भी स्पीशीज आपके सामने हैं उन सबको एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर लें. स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दें. कर दिया है सबको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद. अब ये ध्यान दें कि आपको ब्रैकेट के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना है. ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के पीछे, ब्रैकेट के अंदर और आई शुड से बॉक्स के अंदर. इट्स नॉट ब्रैकेट, इट्स अ क्लोज्ड ब्रैकेट फ्रॉम एवरी साइड, सो इट्स अ व्हाट, बॉक्स काइंड ऑफ थिंग, स्क्वायर बॉक्स. Somewhere it will become rectangular also if the size of the compound is big like here. So we will call it a box, no problem. So inside the box, box के अंदर आप टच नहीं करेंगे कुछ भी और बॉक्स के पीछे भी आप कुछ नहीं लिखेंगे. ठीक है. तो चेंजेस कहाँ आएंगे? अगर आपको कुछ भी लिखना होगा तो आप आगे लिखेंगे, फ्रंट ऑफ द बॉक्स. ठीक. ओके. तो आपने क्या किया? सबसे पहले क्वेश्चन लिखा, फिर ये टेबल बनाई, फिर से क्वेश्चन लिखा और सारी चीजों को बॉक्स में बंद कर दिया. अब आप देखें कि आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस है तो इसके बारे में नहीं सोचेंगे. आयरन के जो बैलेंसिंग है वो प्रॉपर नहीं है. यहाँ लेफ्ट में 1 है और राइट में 3 है. और ऑक्सीजन की भी प्रॉपर नहीं है. ऑक्सीजन लेफ्ट में 1 है पर राइट में 4 है. अब आपको क्वेश्चन आता है कि आपको क्या क्या बैलेंस करना है. तो आपको नंबर ऑफ आयरन बैलेंस करने हैं और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं. सॉरी, नंबर ऑफ ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं. हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बराबर है, दोनों तरफ दिख रहा है. ठीक. अब जब आपको किसी भी क्वेश्चन में 2 या 3 या 4 चीजें ऐसी मिलती हैं जिनको आपको बैलेंस करना होता है तो उसमें से किसे पहले बैलेंस करें. अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि पहले आयरन को बैलेंस करें कि पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करें. तो इस सवाल का जवाब ये है कि जो ज्यादा अनबैलेंस्ड हो उसे पहले बैलेंस करें. ज्यादा अनबैलेंस्ड का मतलब ये 1 और 4 में 3 का डिफरेंस है और ये 1 और 3 में सिर्फ 2 का डिफरेंस है. तो आप पहले किसे बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा अनबैलेंस्ड है. ठीक है, एज कंपेयर टू आयरन. तो यहां पर 1 ऑक्सीजन है और यहाँ 4 है. तो आप दोनों तरफ 4 कैसे करेंगे? यहाँ तो 4 है ही. यहाँ क्या करें कि LHS में भी 4 ऑक्सीजन हो जाए. तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ 4 लिखते हैं. हमने क्या कहा था? बॉक्स के अंदर आप कोई चेंज नहीं कर सकते, तो आप यहाँ O4 नहीं लिख सकते, आप बॉक्स के आगे चेंज कर सकते हो. तो हमने बॉक्स के आगे 4 लिखा. लेकिन जैसे ही हमने बॉक्स के आगे 4 लिखा, ऑक्सीजन तो LHS में हो गए 4. ठीक. लेकिन हाइड्रोजन का क्या हुआ? हाइड्रोजन बढ़कर LHS में 4 2 जा
8 हो गए, ठीक है, 4 2 जा 8 हो गए। तो अब क्या हुआ, जो हाइड्रोजन आपको पहले बैलेंस दिख रहे थे वो अनबैलेंस हो गए हैं ऑक्सीजन बैलेंस करते करते। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया इसलिए मैंने उस पर टिक लगा दिया, यहां भी 4 हो गए और यहां भी 4 हो गए। मगर आपके ऑक्सीजन बैलेंस करते करते हाइड्रोजन यहाँ 8 हो गए और यहाँ अभी भी 2 ही हैं। तो अब आप क्या करें, हाइड्रोजन बैलेंस करें, ठीक। तो हाइड्रोजन कैसे बैलेंस होगा, यहाँ आपको 8 दिख रहे हैं, यहाँ 2 दिख रहे हैं, तो यहाँ क्या लिख दें कि हाइड्रोजन यहाँ भी 8 हो जाए। सो यू कैन राइट 4 ओवर हियर, सो 4 2 जा 8। सो नाउ in the RHS also you have 8 hydrogens. So your hydrogen is also balanced. Now what is left is iron. Iron यहाँ कितने 3 और यहाँ कितना 1. So simply आप यहाँ 3 लिख दें, ठीक है। और now your iron is also balanced with 3 on each side. फिर मैच कर लें, LHS में 3 आयरन है, RHS में भी 3 है, देखिए है। हाइड्रोजन LHS में 8 है, 4 2 जा 8 और इस तरफ 4 2 जा 8, यहाँ भी 8 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ठीक है, यहाँ पे भी 4 है। सो इट मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन LHS एंड RHS आर इक्वल, राइट। सो it means your reaction, which was this Fe plus H2O giving Fe3O4 plus H2, has changed to this. So you can rewrite this reaction without the boxes and this is your answer. So this is how your reaction is balanced, right? So this was very easy to be done. Just inbox the content and change the number in front, and the number should be changed as such. On LHS and RHS the number should be equal. Now while balancing the reaction, there may be certain children, those who could not understand the meaning of numbers written in front, numbers written here. So I will explain it so that you can properly balance the chemical reactions without any problems. Supposingly, I take an example of Fe3O4. What is the meaning of this 3 in this formula? In this formula, the meaning of 3 is there are 3 iron. And what is the meaning of O4? It means there are 4 oxygen. So if any number is written in the form of subscript for any number, देखिए अगर हम कोई एक सिंबल लेते हैं x और उसमें कोई चीज उसके फुट के पास लिखते हैं यहाँ, जैसे if I write 4 here, तो this thing which is written at the foot is called as subscript. और अगर हम उसे यहाँ लिखते हैं पावर की जगह पर तो वो कहलाती है सुपरस्क्रिप्ट। तो हम यहाँ कोई सुपरस्क्रिप्ट नहीं लगाते हैं, हम या तो सबस्क्रिप्ट लगाते हैं या फिर हम नंबर आगे लिखते हैं। तो अभी मैंने आपको नंबर जो सबस्क्रिप्ट्स के फॉर्म में होते हैं उनका मतलब बताया कि ये जो 3 लिखा है ये सिर्फ आयरन को बिलोंग करता है, इसका ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरली यहाँ जो 4 लिखा है ये ऑक्सीजन का नंबर बताता है, इसका आयरन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने Fe3O4 के आगे 2 लिख दिया, जैसे ही Fe3O4 के आगे 2 लिख दिया तो ये 2 जो है ये 2 इस आयरन के लिए भी है और इस ऑक्सीजन के लिए भी है। और अगर इसमें फॉर्मूले में कुछ और भी आगे होता तो ये उसके लिए भी होता। यानी जो नंबर फॉर्मूले के आगे लिखा रहता है वो बाकी हर स्पीशीज के लिए कॉमन रहता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नाउ लेट अस डिस्कस द मीनिंग ऑफ 2 written over here. So this 2 has a relation of multiplication with these numbers. तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके 2 into 3, 2 into 3 यानी कि 6 iron. And for oxygen also this 2 has to be multiplied with 4. So 2 into 4 that is 8 oxygen. तो आई होप दिस इज क्लियर कि अगर नंबर जो है ऐसे फुट के पास लिखा हो तो वो सिर्फ उस एलिमेंट को बिलोंग करता है। जैसे 3 लिखा है Fe के फुट के पास तो वो 3 Fe बताता है। एंड इफ द नंबर इज रिटन इन फ्रंट इट बिलोंग्स टू ऑल द एलिमेंट्स विच आर रिटन आफ्टर इट। सो इफ 2 is written in front it means that they belong to iron also and they belong to oxygen also, like this. Similarly
4 2 ja 8 hydrogen are here and 4 oxygen are there, because here if no number is there it means 1 is there. So 4 1 ja 4 oxygen, right? So this is how it is done. So I hope this was clear and you have understood how to balance a chemical reaction.